Okay, dear students. So today we are going to learn the multiplication of 3 digit, 4 digit and 5 digit. Okay, clear? So let me start right now. So dear student, before going to learn this 3 digit by 3 digit multiplication, we should know the formula. So I'm preparing. Suppose we are multiplying 3 multiply 3 digit. So at first we need to multiply 1, 2, 3. Just I'm preparing the texture of it. At first we need to multiply these two things. After that, in the second page, we have to multiply cross. Okay. In the third state, we have to multiply triple cross. Okay. After that, in the next is we learned that we need to multiply double cross of this last two. After that, at the end, we need to multiply vertically. This much only. So this is the first step, second step, third step, fourth step, and fifth step. And this is 3 by 3 multiplication. One example, 3, 2, 1, 2, 1, 3. Simple question I have taken to do calculation. At first, the first method I am doing 3 1 ja 3. Second method is double cross these two numbers. Okay, so 3 2 ja 6 and 1 1 ja 1. So 6 plus 1 Right. become 7. Okay, now triple cross 3 3 ja 9 plus 2 1 ja 2 plus 2 1 ja 2. Means 3 3 is 9 plus 2 become 11. 11 plus 2 become 13. So 3 copy 1. Now triple cross is done. Third step is done. Fourth step. Last two number double cross. 2 2 ja 4 and 3 1 ja 3. 4 plus 3 becomes 7 and carry 1 become 8. Then last one is vertical. 3 2 ja 6. 68373, three digit multiplication. We have done it in the single line. So this is only the 3 cross 3 multiplication. Okay, now I am doing 3 cross 2 multiplication. That is 2 3 4 multiply 14. Okay, dear students, whenever we see this kind of the number, it is 3 by 2 multiplication. So better to put 1 0 here. Now it becomes 3 by 3 multiplication. Rest all you know how to do. For 4 is 16, 6 carry 1. Now double cross, last two double cross. Okay, so 4 3 is 12 and 4 1 is 4. 12 plus 4 become 16 plus 1 carry 17. 7 carry 1. After the triple cross, 4 2 is 8 and 3 1 is 3. 4 0 is 0 it will be. So I am not going to do this 4 0 is 0. Now only these two things I am doing. 2 4 is 8 and 3 1 is 3. So 8 plus 3 become 11 and carry 1 become 12. So 2 writing and 1 carry. Then last two triple digit so we have done. Now double cross. So 3 0 is 0 and 2 1 is 2. So 2 plus 1 become 3. Now finally vertical 2 0 is 0. So the correct answer is 3276. Is it clear, dear students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So we sir. have done now 3 by 3. Now we are moving forward to 4 by 4. 4 by 4 vertically crosswise spread 10. Okay. First of all, texture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 by 4. At first vertical, it is so simple. First step. Then second step is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is crosswise, double cross. Then third method is triple cross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So here triple cross means this number, then this number, and then this number we have to multiply. Now we are coming to the fourth step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So directly we know all cross. Only the cross we have to multiply. Okay, now fourth step is over. Now fifth stage is 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे देखो सिंगल डबल ट्रिपल ऑल के बाद फिर ट्रिपल आएगा, लेकिन लास्ट वाला तीनों का ट्रिपल आएगा, पहला वाला छोड़ देंगे हम लोग. ओके, नाउ सिक्स स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे ट्रिपल क्लस लास्ट का हो गया. अभी करेंगे डबल क्रॉस लास्ट टू का.
After that, seventh step is 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सिर्फ वर्टिकल होगा। शायद पूरा पैटर्न सबको समझ में आ गया। और ये जो एक एक Yes, sir. आउटपुट जो है ना, यहाँ पे एक एक डिजिट प्लेस करेगा। इट इज कंटेनिंग वन वन डिजिट। तो 4 डिजिट को 4 डिजिट में मल्टीप्लाई करने से होता है 7 डिजिट, अदरवाइज 8 डिजिट। मिनिमम 7 डिजिट होता है, उसीलिए हम लोग का यहाँ पे 7 तो प्लेसेस है। यदि यहाँ पे यदि कोई एक कैरी हो जाता है तो वो 8वां वाला डिजिट फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली एक बहुत बेहतरीन आइडिया भी दे रहा हूँ। जब 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 डिजिट का भी हो सकता है, नहीं तो 4 डिजिट का भी हो सकता है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा, हाँ सॉरी, 3 and 3, 2 and 2 बिकम 3 और 4। ओके, एंड 3 क्रॉस 3 करेंगे तो आएगा मिनिमम 6 डिजिट आएगा, नहीं तो सॉरी 5 डिजिट आएगा, नहीं तो 6 डिजिट आएगा। उसके बाद 4 क्रॉस 4 करेंगे तो ये आएगा 7 डिजिट, नहीं तो 8 डिजिट। 5 क्रॉस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 9, 8. 9 डिजिट, अदरवाइज 10 डिजिट। ऐसा कुछ आता है, ये टेक्सचर है। तो अभी 4 बाय 4 का कर देता हूँ। 1 2 2 1, थोड़ा इजी नंबर लेता हूँ तभी सभी को इजीली समझ में आ जाए। एक दो बार छोटा छोटा वाला नंबर का प्रैक्टिस कर लेना। yesterday तो आई हैव गिवन यू ऑलरेडी द वर्कशीट, सो सेम वर्कशीट हैज टू बी डन बाय यू ऑल। ओके, सो 1 2 2 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 2 3 2 1 के साथ, ताकि इजी पड़े कैलकुलेशन। सबसे पहला वाला देखो, सीधा वर्टिकल, 1 1 जा 1, उसके बाद डबल क्रॉस, 2 1 जा 2 डायरेक्टली लिख देता हूं मैं 4। अभी ट्रिपल क्रॉस, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, so 4 + 2 become 6, 6 + 3 become 9। ओके, नाउ उसके बाद ऑल क्रॉस होगा, 1 1 जा 1, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 2 2 जा 4, 3 + 4 7, 3 2 जा 6, 7 + 6 become 13, सो 3 आई एम राइटिंग 1 कैरी। उसके बाद देखो ऑल क्रॉस हो गया, उसके बाद फिर होगा ट्रिपल क्रॉस। तो लास्ट वाला ट्रिपल क्रॉस, ये लास्ट वाला है ट्रिपल क्रॉस, इतना। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, so 6 + 4 become 10, 10 + 2 become 12, 12 plus carry 1 become 13, 3 1। उसके बाद डबल क्रॉस, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 + 3 become 7, 7 plus carry become 8। लास्ट वाला वर्टिकल, 2 1 जा 2, so 2 8 3 3 9 4 1। so this is the multiplication with the help of vertical crosswise pattern. Vertical and cross. This is the most important formula which we need to take care of it. Okay, so 4 by 4 calculation Yes, is sir. also done. Yes, now we are doing the 5 multiply 5. That is also so simple. Sir, with Why? 2 digit, 4 digit pin. Sorry, Sir, 2 digit के साथ multiply 4 digit 4 digit. calculation you are telling ना? Okay, Yes, sir. 3 2 2 4. I'm just doing multiply of Sir, 12. so instead of two missing number, we can take 0. हाँ, दैट सिंपल, नाउ इट बिकम 4 डिजिट। फटाफट कैलकुलेशन करोगे, और जहां पे जीरो का मल्टीप्लाई आएगा ना, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो का मल्टीप्लाई वाला को छोड़ दोगे। 0 2 जा 0 है, फिर इसको भी यदि 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 4 जा 0, छोड़ ही दोगे उसको। जितना नंबर है ना, जितना नंबर दिख रहा है उसी को बस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 2 4 जा 8, अभी डबल क्रॉस, तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 बिकम हो गए 8। उसके बाद ट्रिपल क्रॉस, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 + 2 बिकम 6, एंड 4 0 जा 0, तो डायरेक्टली लिख देंगे 6 ओनली। उसके बाद ऑल क्रॉस होगा। ऑल क्रॉस कितना होगा, सबसे पहले ये 2 और 4 को, तो 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बस इन दोनों का क्रॉस कर देंगे। 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 6 + 2 बिकम अगेन 8। उसके बाद लास्ट वाला 3 जन का ट्रिपल क्रॉस करेंगे, लास्ट वाला 3 का, तो ये 0 0 से क्रॉस करने से कोई मतलब है क्या, नहीं है, सो 3 1 जा 3 लिख देंगे। उसके बाद लास्ट वाला का डबल क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, 3 0 जा 2 0 जा, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद लास्ट वाला का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 0 जा 0, तो इन दोनों को लिखना जरूरत नहीं है। 3 8 6 8 8 इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद Yes, sir. 5 डिजिट का मैं टेक्सचर बना देता हूँ, रेस्ट हैज टू बी डन बाय यू। सबसे पहले मैं इसको कलर में बना देता हूँ एक ही में ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो ये 5 डिजिट हो गया। सबसे पहला वर्टिकल होगा, मैं इसको लिख देता हूं 1। उसके बाद होगा डबल क्रॉस, ये होगा सेकंड। ठीक है, उसके बाद थोड़ा दूसरा कलर यूज करता हूं टू रिप्रेजेंट इट, ब्लू कलर। उसके बाद क्या होगा, ट्रिपल क्रॉस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 2, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 3। ठीक है, ये हो गया हम लोग का तीसरा वाला। चौथा वाला करें, चौथा वाला को मैं थोड़ा कलर यूज कर देता हूँ रेड। तो चौथा वाला क्या होगा, ऐसे ही इसके साथ, ये पहला वाला लास्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड वाला सेकंड के साथ, और फोर्थ वाला फर्स्ट के साथ। इतना चेन बनता है। और ये हो गया क्या, 4। उसके बाद हाँ 4 4 यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं 4। उसके बाद 5 वाला कैसे करेंगे, 5 वाला को मैं थोड़ा ब्लू कलर कर देता हूँ। 5 वाला ऑल क्रॉस रहेगा, कहने का मतलब है 1 फर्स्ट लास्ट के साथ, सेकंड फोर्थ के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, फोर्थ सेकंड के साथ, और फिफ्थ फर्स्ट के साथ। इतना सारा क्रॉस है। उसके बाद ये निकल गया फिफ्थ वाला। उसके बाद अभी आएंगे सिक्स्थ वाला। सिक्स को मैं थोड़ा दूसरा कलर फिर करता हूँ, सिक्स्थ वन को मैं करता हूँ फिर व्हाइट में। सिक्स्थ वन व्हाइट है, कहने का मतलब है लास्ट वाला तीनों का क्रॉस होगा। ये इसके साथ क्रॉस होगा, मिडिल मिडिल के साथ क्रॉस होगा, और ये इसके साथ क्रॉस होगा। ये हो जाएगा सिक्स्थ वाला। उसके बाद ट्रिपल क्रॉस हो गया। अभी करेंगे हम लोग डबल क्रॉस, लास्ट वाला 2 का डबल क्रॉस। उसको येलो कर देता हूँ। लास्ट वाला 2 का डबल क्रॉस क्या है, बहुत सिंपल है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 7th वाला डिजिट। और 8th वाला डिजिट के लिए मैं फिर काम करता हूँ, रेड कलर यूज करता हूँ। और ये है वर्टिकल, ये है 8 वाला नंबर। शायद एक छोड़ दिया मैं, ट्रिपल का हो गया, डबल का भी हो गया, सिंगल का भी हो गया। हाँ, वैसे आगे बढ़ता है फिर। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है। एक सैंपल भी करके दिखाता हूँ। 2 1 3 2 4 2 1 2 3 2 1 2। छोटा नंबर इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में हमको इजी पड़ेगा। गेटिंग ना? एनी डाउट इफ यू आर हैविंग, यू कैन आस्क इट टू मी नाउ। सबसे पहले 2 2 जा 4, उसके बाद डबल क्रॉस, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। तो 4 प्लस 8 प्लस 2 कितना होगा, 10। 0 कॉपी 1, डायरेक्टली ट्रिपल क्रॉस। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 हो गया, एंड 4 1 जा 4, मतलब 8 4 प्लस 4 बिकम 12, 12 प्लस कैरी 1 बिकम 13, 3 1। उसके बाद चौबल क्रॉस होगा, ज्यादा डिजिट दे दिया था मैं, 6 6 दे दिया था। उसके बाद चौबल क्रॉस होगा। सो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 बिकम 12, 2 1 जा 2, 12 प्लस 2 बिकम 14, एंड 4 2 जा 8, 14 प्लस 8 बिकम 22 प्लस 1 बिकम 23। चौबल क्रॉस हो गया। उसके बाद पांचों के पांचों का क्रॉस होगा। सो 2 1 जा 2, उसके बाद 2 2 जा 4, कितना होगा, 2 प्लस 4 बिकम 6। उसके बाद क्रॉस होगा। 3 1 जा 3, 6 प्लस 3 बिकम 9, 4 3 जा 12, 9 प्लस 12 बिकम कितना होगा, 21 21। 21 के बाद 2 2 जा 4, 21 प्लस 4 होगा 25, और कैरी 2 मतलब 27। तो 2 हाथ में रखा और 7 को कैरी लिया। उसके बाद लास्ट वाला जो ओबल क्रॉस होगा, 1 1 जा 1, 2 4 जा 8, कहने का मतलब कितना हो गया, 9 9। और 3 2 जा 6, 9 प्लस 6 बिकम 15। उसके बाद फिर 3 2 जा 6, 15 प्लस 6 बिकम 21, 21 प्लस 2 बिकम होगा 23। उसके बाद लास्ट वाला का ट्रिपल क्रॉस, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कहने का कितना हो गया, 4 प्लस 2 बिकम 6, और 3 3 जा 9, 9 प्लस 6 बिकम 15, 16 17, 7 कैरी 1। उसके बाद लास्ट वाले का डबल क्रॉस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 बिकम कितना हो जाएगा, 9, 9 प्लस कैरी 1 10, 0 1। उसके बाद लास्ट वाला का वर्टिकल, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 बिकम 3। सिंगल लाइन पे आंसर हो गया हम लोग सर का खत्म। 0 जीरो जरूरत नहीं है, ये ना एक्चुअली 6 डिजिट कर दिया था उसीलिए।
देखो Yes, sir. हाँ वही 2 1 जा 2 और कैरी 1 बिकम 3 हो गया, हो सकता है, चेक कर लेना। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन विथ दिस 5 मल्टीप्लाई 5 डिजिट, 5 मल्टीप्लाई 5 डिजिट। सो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 बाय 5 मल्टीप्लाई तो रियली थोड़ा सा माइंड तो यूज करना ही पड़ेगा बड़ा बड़ा डिजिट्स के लिए। नो प्रॉब्लम, we have gone through these all methods, we have studied all, Yes, sir. and we have done the practice also, and I have given you this method also na. Yes, sir. Yes. Okay dear students, now again we are moving forward, multiplication with the 9। तो उससे पहले हमको ना थोड़ा सा बेस का कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा। जैसे कि 8 है, 8 का बेस क्या है, 10 है, तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, 10 माइनस 8 बिकम 2। 22 का बेस क्या है, 100, तो 100 का कंप्लीमेंट कितना होगा, 22 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 78। 22 का कंप्लीमेंट है 78। उसके बाद 123 का है बेस 1000, और 1000 है कहने का मतलब 123 का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 877। दिस इज द कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब बेस नंबर से इसको माइनस कर देते हैं। ये कंप्लीमेंट कैसे निकला, 1000 minus 123। How to do subtraction? All from last from 10 and rest all from 9। 10 3 का कंप्लीमेंट है 7, उसके बाद 9 minus 2 become 7 and 9 minus 1 become 8, 877 ऐसे निकला। When we subtract any number from the base number, then only the complement will come. Okay, so now we are learning the multiplication with 9। तो बहुत सारा, लगभग तो सभी आइडिया तो हम लोग पिकअप कर ही लिए, इज इट, सभी आइडिया हम लोग पिकअप कर ही लिए। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो बेहतरीन वाला मल्टीप्लिकेशन रहेगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में शायद कुछ ही कंसेप्ट बचा रहेगा, मैक्सिमम तो हम लोग कवर कर ही लिए। उसके बाद डिवीजन तगड़ा वाला पढ़ोगे, क्योंकि सिंगल लाइन पे डिवीजन भी होगा। ओके, एंड दैट मेथड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस यू फ्रॉम द बिगिनिंग। उसके बाद हम लोग आगे डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, फैक्टर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो हम लोग का मदद करने वाला है आगे। तो चलो, एनी हाउ वी आर जस्ट लर्निंग राइट नाउ मल्टीप्लिकेशन विद 9। तो कोई भी नंबर को 9 या 99 या 999, 9 सीरीज, दिस इज 9 सीरीज, 9 सीरीज से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले कोई भी नंबर को 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दोगे। थोड़ा सा यहाँ पे शायद मैं क्वेश्चन को गलत लिख दिया हूँ। दिस इज 685, सो दिस ऑल्सो 685, 685। द क्वेश्चन वाज रॉन्ग लिटिल, नो प्रॉब्लम। So 685 we are multiplying with the 999. Okay, so what will happen? सबसे पहले 685 minus 1 685 माइनस 1 नहीं करेंगे, ये मल्टीप्लाई है 999। चलो, इसका मैं दोनों चीज बता दूंगा। ये कैलकुलेशन कैसे होता है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले 685 से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 684। ओके ओके ओके, इन दैट वे यू आर टेलिंग विद बाबू। ओके फाइन फाइन। 685 से 1 माइनस कर देंगे और 685 का कंप्लीमेंट निकाल देंगे। 5 का कंप्लीमेंट कितना है, 5। 8 का कंप्लीमेंट क्या है, मतलब 9 से 8 को माइनस करोगे तो आएगा 1। उसके बाद 9 से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3। सीधा आंसर एक लाइन पे निकल गया, डन ना। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज को 999 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो ये तीनों डिजिट है, ये तीनों डिजिट को लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9, ये वाला मेथड से हमको माइनस करना पड़ता है। तो समझ में आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद Sir, can we take base number of 22 as 10? सब कुछ कर सकते हैं। बेस नंबर 22 का 10 यदि करोगे ना, तो जो भी आंसर निकलेगा उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हम लोग कर रहे थे। यस, चलो sir. बता दूंगा, उसको भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग कर रहे हैं 257 मल्टीप्लाई 999। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे ओरली। सबसे पहले 257 से 257 का कंप्लीमेंट निकालो, कितना होगा, 10 से 7 गया कितना होगा, 3। 9 से 5 गया कितना होगा, 4। 9 से 2 गया कितना होगा, 7। ओके ना। उसके बाद 257 से 1 माइनस कर दो, कितना होगा, 5 6 7 4 3
तो वन लाइनर आंसर हो गया कि नहीं? यस सर। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। 1 2 3 7 मल्टीप्लाई 999 ये दोनों 4 डिजिट का है। यहाँ पे बस कंडीशन एक ही ध्यान रखना कि दोनों 4 डिजिट होना चाहिए, या दोनों 3 या दोनों 2 डिजिट होना चाहिए। उसके बाद ऑड भी डिजिट्स के लिए भी मैं बताऊंगा। देखो हम लोग तो नॉर्मल वाला मेथड तो पढ़े ही हैं, वो वाला मेथड से जैसे कि वर्टिकली क्रॉसवाइज से इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये एक्सक्लूसिवली इसी के लिए ही बना है, जिससे हम लोग कैलकुलेशन को और भी इजी बना सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला व्हाट वी हैव टू डू, लास्ट फ्रॉम 10 and rest all from 9, we need to subtract and find out the complement of 1 2 3 7. Who can tell me the complement of 1 2 3 7? 8 8 7 7 6 7 6 3. 6 3. Yes. After that 1 2 3 7 minus 1 become 1 2 3 6. सीधा आंसर निकल गया हम लोग के साथ एक लाइन पे। दिस इज वैदिक मैथ्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 4 3 मल्टीप्लाई 99999। इतना बड़ा नंबर को कैसे माइनस करें? कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेस नंबर कितना है? 1 लाख। इसका बेस कितना है? 1 लाख। तो 243 का कंप्लीमेंट निकाल लो 1 लाख के बेस में, कितना होगा? 767। वेरी गुड, 7 होगा, ये होगा 6, उसके बाद ये फिर 7 होगा। लेकिन तो ये तो 3 डिजिट का है, बाकी 2 डिजिट Sir, का we will add ये क्या करोगे? zeros. 9 लगा 9 दोगे, 9. 9 लगाओगे, क्योंकि रेस्टल फ्रॉम 9, देखो इसका कैलकुलेशन ऊपर में मैं कर देता हूँ। एक्चुअली ये क्या है? 9 9 9 9 10 ये है। इसके साथ हम लोग 243 को माइनस कर रहे हैं ना। देखो इसका बेस पे ये है 9, ये है 9, ये है 10, ये 3 डिजिट चल रहा था, लेकिन ये 5 डिजिट है ना, तो बाकी तो दो चीज का 99767 तो आएगा ही आएगा। तो 99767 लिख दिए, 7 उसके बाद 243 से 1 माइनस कर तो हो जाएगा 242। आंसर निकल गया। 7 5 7 9 9 10 minus 9 9 4. नहीं समझा? 757, not 767. So we are getting ओके 7 ओके 5 ओके 7. ओके ओके 9 से 4 के 5, करेक्ट, you were telling correct, this is 5. So I hope the process is going on fine and you are learning it so perfectly. Yes, sir. That's great, very good. उसके बाद सभी कंडीशन में एक एक करके बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक दो प्रैक्टिस हम लोग भी कर लेते हैं। 437 मल्टीप्लाई 999, सीधा एक लाइन में आंसर बताओ। And you all need to participate. Those who are not understanding, they have to ask me. 4 3 7 5 6 3. Okay. Asutosh, Shivam, 4 3 Deepak, 6. you need to participate. See, we are going to do it super fast. So first of all 4 3 6, 1 माइनस कर दोगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद 999 के बेस पे इसका कंप्लीमेंट निकाल दो। 9 minus 4 become 5, 9 minus 3 become 4 3 6 5 6 6। उसके बाद 10 से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3। डायरेक्टली एक ही लाइन पे हम लोग का आंसर निकल गया। सो इज इट क्लियर? Sir. Is it total? That's it, that much only. Now one more odd वाला दे देता हूँ। 327 मल्टीप्लाई 9999, 4 ठो 9 बना देता हूँ। तो इसका बेस नंबर है 10,000। इसका बेस कितना है? 10,000। फटाफट करो, बोलते जाओ। 3 2 6 9 6 7 3. 3 2 6 9 Sir, 6. 3269673. Very good. This is the correct answer. And now you are super fast right now. I think you have understood the concept of calculating with the multiplication with 9 series. तो बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. Yes, So sir. can't understand multiplication with 9 series. 9 सीरीज हो गया, और एक बार मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो सब लोग ध्यान दो, ये है क्वेश्चन 78 और 999। ठीक है, अभी ध्यान देना रमन, इट इज सो इजी। सबसे पहले इसका बेस क्या है? 1000 है, तो उसको 3 डिजिट में मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत है?
No, sir. 78 है ना, तो 078 लिख दिया, बस खत्म। 78 है तो Yes, sir. 78 ही तो लिखूंगा ना। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि 78 से 1 माइनस करोगे, कितना हुआ? 77. वेरी गुड। उसके बाद 78 का 1000 के बेस पे कंप्लीमेंट निकालोगे। तो 78 का 1000 के बेस पे कंप्लीमेंट क्या आएगा? 78 को किससे माइनस करोगे? 1000. 1000 से माइनस करके दिखाओ। इससे इसको माइनस करना जो है, यही करना वही है, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 से 8 नहीं जाएगा। तो जब कोई भी चीज को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट फ्रॉम 10 एंड रेस्ट फ्रॉम 9 करते हैं ना। तो 9 Yes, माइनस sir. 0 बिकम 9, 9 माइनस 7 बिकम 2, 10 माइनस 8 बिकम 2। तो आंसर हो गया 77922 हो गया। सबसे पहले ध्यान दो, जो भी नंबर रहेगा उससे 1 माइनस कर दोगे और बाकी नंबर का सिर्फ कंप्लीमेंट ही निकाल दोगे। ऊपर का जितना नंबर रहेगा उसी के बेस पे हम लोग बस कंप्लीमेंट निकाल देंगे। बिल्कुल क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, उसके sir. बाद सबसे पहले बताओ 27 से 1 लेस करने से कितना होगा? Sir, 26, 973 तो answer. 999 1000 के बेस पे 27 का कंप्लीमेंट निकालो फटाफट, कितना होगा? 973. जिसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो, 1000 से 27 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 973। खत्म। सीधा आंसर हम लोग का सिंगल लाइन पे निकल गया। एंड दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद 9 सीरीज। ओके, इज इट Okay, सो sir. सिंपल? दैट्स इट। Yes, sir, understood. और एक क्वेश्चन कर देता हूं बिकॉज फॉर रमन इट में भी 439 मल्टीप्लाई 999। हाउ टू डू मल्टीप्लीकेशन? इससे एक माइनस करो, कितना होगा? 43 Sir, 8. 8. 43856. 1000 के बेस पे 439 का कंप्लीमेंट निकालो। 10 9 से 4 गया Sir, 561. 5, उसके बाद 9 से 3 गया 6 और 10 से 9 गया 1। वेरी गुड। तो हो गया 438561। तो हम लोग का कंडीशन क्या है पता है ना? यदि हम लोग 3/3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 4/4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 100/100 का भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए ओके है। ये वाला मेथड इसके लिए ओके है। Sir, I have understand. ओके गुड। तो ये वाला बेस मेथड सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद ये वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड पे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आई टोल्ड यू दैट इट इज अ सिलेबस ड्यूरिंग द अलजेब्रा, सो आई विल बी टीचिंग यू दैट टाइम ओनली। ओके क्लियर? उसके बाद दूसरा वाला कंडीशन भी एक आता है। पहला वाला हम लोग कंडीशन पढ़े थे कि 23 था और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे 99 के साथ। तो क्या होता था? ये 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, तो इजीली हो जाता था कि 23 से 1 माइनस करो, कितना होगा? 22। उसके बाद 23 का कंप्लीमेंट निकालोगे तो कितना आएगा? 77। तो 2277 आंसर निकल जा रहा था। लेकिन ये वाला मेथड क्या है? ये 2 डिजिट का है लेकिन ये 3 डिजिट का है, तो इसके लिए थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन अलग रहता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ में आ गया होगा? तो ऐसा वाला कैलकुलेशन को कैसे करते हैं? सबसे पहला ये 2 डिजिट का है तो ये भी 2 डिजिट का है। जो बचा हुआ है उसको एक तो पहले राउंड बना दो, जो एक्स्ट्रा है ना उसको पहले हम लोग क्या करेंगे? राउंड बना देंगे। बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद यहाँ पे जो 4 है, जो एक्स्ट्रा डिजिट निकला उसमें से हम लोग 1 प्लस कर देंगे। क्या होगा? 1 5, sir. प्लस कर देंगे 5. तो 5 हो गया। ये 5 को इससे माइनस करेंगे। पुराना वाला नंबर से 3 से 1 माइनस करते थे तो 22 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको एक बढ़ा के माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 4 से 1 प्लस किए तो 5 हो गया। वो 5 को यहाँ पे माइनस करा रहे हैं हम लोग, ठीक है? और बाकी का सेम टू सेम मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि और एक बार मैं बता देता हूँ, 425 मल्टीप्लाई 999 हम लोग 999 कर रहे हैं। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो बचा नंबर क्या है? 4। तो 4 यदि बचा है तो 4 का एक्स्ट्रा क्या है? एक 5, ठीक है ना? तो 425 से 5 को माइनस करूंगा और 25 का मैं कंप्लीमेंट निकाल दूंगा। तो 25 का कंप्लीमेंट क्या आएगा?
75, ठीक ना। और 425 से 5 माइनस करूंगा तो आएगा 420। सीधा आंसर हम लोग के हाथ पे है। इसके लिए थोड़ा सा माइंड पे हम लोग को रखना पड़ता है कुछ कुछ चीज, उसके बाद इजी हो जाता है। करेंगे काम अभी? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो दूसरा वाला क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, और यहाँ पे जो 2 डिजिट है, ये तो देखो ये 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो ये जो 2 डिजिट है, इसको हम लोग क्या करेंगे? +1 सर्कल में रखें। +1 करेंगे, वेरी गुड। तो 87 से +1 करेंगे तो क्या होगा? 88। 88 इसको हम लोग किससे माइनस करेंगे? टोटल वाला टर्म से। 8746 से माइनस करेंगे 88 को, और एज यूजुअली सिर्फ 46 का हम लोग कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो 46 का कंप्लीमेंट कितना होगा बताओ पहले? 54। 54 54। 4 ओके, बाकी का इसका कैलकुलेशन करके निकालो, देखते हैं आंसर निकल रहा है कि नहीं हम लोग का। सर it will be 865854 865,884। कितना हो रहा है? 865854 एग्जैक्टली 100% करेक्ट। देखो इससे नॉर्मल माइनस कर रहा हूं, तो सबसे पहले 6 से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लगा दिया डॉट, तो ये हो गया 8। उसके बाद ये हो गया 7, सॉरी यहां से ये नहीं जाएगा तो डॉट, और यहां से ये भी नहीं जाएगा तो डॉट, तो 7 से डॉट गया 6, कट हो जाएगा ना। उसके बाद 8 का कंप्लीमेंट है 2, 3 + 2 बिकम हो गया 5। उसके बाद 8 का कंप्लीमेंट है 2, 6 + 2 बिकम 8। 865854, 865854 इज द 100% करेक्ट आंसर। बिल्कुल, आगे समझ में? यस 3 सर। एग्जांपल आपके सामने ही है, एक तो एग्जांपल फिर करते हैं। 2478 मल्टीप्लाई 99 करके दिखाओ। सबसे पहले मैं गोला बना देता हूं जो एक्स्ट्रा नंबर है। देख लो कंसेप्ट को, जो बोर्ड पे ऑलरेडी डिस्प्लेड है। यू प्लीज चेक इट हाउ टू डू दिस। ओके, क्लियर? डू इट। 245312। अरे वाह, गुड। सर 5322 सर। Sir, 25522. ओके, गुड, लेट मी चेक। सर it will be 245322 पक्का? Yes sir, 25322। दैट्स ग्रेट। 245322। ओके, लेट मी सी नाउ। सबसे पहले 24 से 1 प्लस करेंगे, कितना होगा? 25। तो 25 2478 से 25 को क्या करूंगा मैं? माइनस। minus और 78 का कंप्लीमेंट क्या है सबसे पहले बता दो। Sir, 22. ओके, उसके बाद इसको Yes, जस्ट sir. लिख दो। 8 से 5 गया 3, 7 से 2 गया 5, उसके बाद 245322 हो गया आंसर। यस सर। Yes sir। ओके, फिर एक तो क्वेश्चन दे रहा हूं। 32798 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 999 से। सेम कंडीशन है, एक ही लाइन पे आंसर निकलेगा। सबसे पहले देखो ये 3 डिजिट है, तो ये भी 3 डिजिट है, तो बचा कुछ नंबर क्या है? 32। कैलकुलेट करो फटाफट। 32766202। 202 देखो कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन को इतना जल्दी कर लोगे। पहले कर पाते थे? नहीं पाते थे। ओके, No sir। सबसे पहले 32 से 1 प्लस करोगे कितना आएगा? 33। तो सीधा क्या करेंगे? 33 को माइनस कर दो और 798 का कंप्लीमेंट यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 327665, और 798 का कंप्लीमेंट है 7 का, मतलब 9 - 7 बिकम कितना है? 2। 9 - 9 बिकम है 0। 10 - 8 है 2। तो 32765,202 है क्या? यस सर। तो इतना जल्दी हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं। सो इज इट सो ग्रेट? Is Yes, it really sir. great? Yes. Now we are moving forward. Multiplication with another questions. जो पहला वाला छोटा है और सेकंड वाला तगड़ा है। सबसे पहले ये है 999 और ये है 345। एक्स्ट्रा डिजिट क्या है?
12 है। 12 को 1 प्लस करने से कितना होता है? 13 होता है। 13 को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हो गया 1 2 3 3 2। उसके बाद कहने के हिसाब से 345 का हम लोग क्या निकालेंगे? कंप्लीमेंट। आंसर निकलेगा 755। सो आंसर बिल्कुल रेडी है सभी के सामने। Yes, sir. तो कितना बड़ा कैलकुलेशन को हम लोग इतना इजीली कर लेंगे, ये तो मैथ्स भी बुरा मान जाएगा It ना। will be 655. सॉरी, The complement will be 655. एग्जैक्टली 9 से 3 गया, Yes, sir. 6 ही आएगा। करेक्ट। Sir, I will instead of edit it. doing that, sir, instead of doing that, we will put 30 in that number and minus it with. सुनो सुनो, देखो हम लोग तो पहला वाला स्टेज में इतना इतना लिख रहे हैं, लेकिन दूसरा वाला स्टेज में इतना लिखना जरूरी है क्या? जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 3 5 2 2 मल्टीप्लाई 9 9 9। चलो बिना लिखे इतना कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 22 का एक्स्ट्रा कितना है? सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 23। सो 23 का 1 एक्स्ट्रा कितना है? 24. 24 को इधर माइनस कर लेंगे क्या? कितना होगा? 2 3 4 कितना होगा? 9 8. 9 8। उसके बाद 522 का कंप्लीमेंट कितना होगा? 4 7 8। एक लाइन में आंसर रेडी। तो ये होता है हम लोग का मैथ्स का कैलकुलेशन। उसके बाद देखो ये तगड़ा वाला है। बहुत सारे लोगों का ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, सर यदि नंबर बड़ा और नंबर यदि 9 वाला छोटा हो तो क्या करेंगे? ये सिंगल है, ये सिंगल है, तो बच्चा नंबर कितना? 3 4 5 6। सीधा उसमें 1 प्लस कर देंगे, कितना होगा? 3 4 5 7। सीधा इसको लिख देंगे यहाँ पे और माइनस कर देंगे, कितना होगा? 3 1 1 1 1 0। चेक कर लो, कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, बिकॉज आई हैव जस्ट रिटन डायरेक्टली इन द कंप्यूटर। 7 से 7 गया 0, 6 से 5 गया 1, 5 से 4 गया 1, 4 से 3 गया 1 और 3 1 गया 3। परफेक्ट। इजी कैलकुलेशन। उसके बाद दिस 7 इज देयर, व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ 7? ऑब्वियसली 3। Sir. ओके, तो 10 minus 7 become 3। तो आंसर हो गया 3 1 1 1 0 3। डायरेक्ट आंसर इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस। Yes, इज इट sir. सो सिंपल टू डू कैलकुलेशन? तो मजा आ रहा है कुछ? Yes, sir. वेरी गुड। तो shall we move forward? Yes. तो आज का हम लोग फिर लास्ट वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11। बहुत सारा बच्चा है, अभी भी धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। मैथ सबसे लंबा मेथड है, सबसे इजी मेथड है, और बहुत सारा ये और भी इजी मेथड है। वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड, दैट इज तो वैलिड फॉर एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ द नंबर, बट सम स्पेशल केसेस आर देयर, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम टेलिंग टू डू कैलकुलेशन। नाउ हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन विद 11? शुरू करें? Yes, sir. सबसे पहले 45 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से। ये टिंचू मिंचू तो कोई भी कर लेगा, लेकिन हम लोग अभी इसका यूनिवर्सल मेथड थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ताकि कोई भी चीज को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली निकल जाएगा आंसर जैसे। ठीक है, सबसे पहले 45 इंटू 11 है, तो पहले बताओ 11 कितना डिजिट वाला है? 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट है, तो दोनों तरफ हम लोग एक एक कम कम करके लगाएंगे। तो 2 का एक कम होने से कितना होता है? 1। कहने का मतलब है दोनों तरफ एक एक 0 लगाएंगे। कोई दिक्कत है? No, sir. तो मैं थोड़ा इसको बड़ा करके लिख देता हूँ, 0 4 5 0। एक बार समझ जाओगे, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हम लोग 2 डिजिट को एक बार में प्लस करेंगे। कितना हुआ आंसर? 0 + 4 कितना हुआ? 4 4 4 4। उसके बाद फिर ये 2 डिजिट को प्लस करेंगे, कितना होगा? 4 + 5 बिकम 9। 9. फिर ये 2 डिजिट को प्लस करेंगे, कितना होगा? 5. 5. तो ये है फॉर्मूला। एक तो क्वेश्चन फिर करें? Yes. Yes, Yes, sir. sir. मैं मल्टीप्लाई करता हूँ थोड़ा बड़ा वाला नंबर को, 98 × 11। सबसे पहले मैं लिखूंगा 9 8 और 11 2 डिजिट का है, तो दोनों तरफ एक एक 0 लगा दूंगा। 11 2 डिजिट है, तो मैं दोनों तरफ एक एक 0 लगाया।
उसके बाद 0 और 9 को प्लस करने से कितना होगा? 9. नहीं, राइट, थोड़ा राइट साइड से करते हैं ताकि कॉपी होगा, क्योंकि ये कॉपी होने वाला है। 0 और 8 को प्लस करने से कितना होगा? 8। 9 और 8 को प्लस करने से कितना होगा? 17। तो 17. 7 लिख के कैरी 1 कर दिया। उसके बाद 9 और 0 को प्लस करने से होता है 9, 9 प्लस 1 होता है 10। डायरेक्टली आंसर 1078। Yes, sir. तो इजी है, Yes, Yes, sir. sir. डायरेक्ट करते हैं। 37 मल्टीप्लाई 11। सबसे पहले 37 लिखना है, दोनों तरफ 0 डालना है और ऐड करते जाना है। 0 और 7 हो गया 7, 7 और 3 हो गया 10, मतलब 0 कैरी 1, और 3 प्लस 0 बिकम 3 प्लस 1 बिकम 4, 407 हो गया ना? Yes, sir. एक क्वेश्चन दूं? Yes, sir. 52 मल्टीप्लाई 11, फटाफट करके दिखाओ। Five seven. Sir, 570. Yes, sir. 570. देखो, सबसे पहले तो मैं ये चीज बता देता हूँ इस चीज के लिए, जब 2 डिजिट का हो ना तो सबसे पहले लिख दोगे 2 को, उसके बाद दोनों को प्लस कर दोगे, कितना होगा? 5 प्लस 2 बिकम 7, और लास्ट वाले डिजिट को लिख दोगे 5, खत्म, 572। इसीलिए ये 2 डिजिट के लिए इजी है, बाकी 3 डिजिट 4 डिजिट भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, दूसरा वाला क्वेश्चन है, सर ने तो बता दिए कि 2 डिजिट के साथ 11 भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन जब मल्टीपल डिजिट आएगा, जैसे कि 4 डिजिट तक आएगा, तो फिर क्या करेंगे? Sir, तो we इसके लिए will भी कोई put दिक्कत नहीं। 40. यहाँ पे 4 4 ठो 1 है, तो हम लोग दोनों तरफ 3 ठो 0, यहाँ पे भी 3 ठो 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या करेंगे पता है ना? 4 चीज को एक साथ प्लस करेंगे। सबसे पहला ये 4 डिजिट को प्लस करो, कितना होगा? 4. 4। 4. उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला 4 ठो डिजिट को प्लस करो, कितना होगा? 5 प्लस 4 9. 9 प्लस 0 0 बिकम 9। उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 ठो 0 को 4 ठो डिजिट को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 0450, 9. वही 9। उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 ठो डिजिट को प्लस करोगे, 4 प्लस 5 बिकम 9, 0 0 बिकम अगेन 9। उसके बाद लास्ट छोटा 4 डिजिट को प्लस करोगे तो आएगा सिर्फ 5। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, बिल्कुल, बस खत्म है, इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1, कोई दिक्कत है? कितना ठो 1 है यहाँ पे? 5. 5. तो मैं लिख देता हूँ 23, और दोनों तरफ 1 2 3 4 4 ठो 0, इस तरफ भी 1 2 3 4 4 ठो 0। सबसे पहले सर, मैं एक ये कम मुझे 5 बताइए। डिजिट को, हाँ 5 डिजिट है तो 4 ठो 0 लगाना है दोनों तरफ। यहाँ पे 4 डिजिट था तो यहाँ पे 3 ठो 0 लगाया गया, यहाँ पे 2 डिजिट था तो 1 0 लगाया गया। कंसेप्ट क्लियर? सबसे Yes, sir. पहले ये 5, अभी 5 डिजिट है तो 5 डिजिट को एक साथ कैलकुलेशन करेंगे। पहला 5 डिजिट का प्लस क्या आ रहा है? 2। 2. फिर दूसरा वाला 5 डिजिट का प्लस क्या आ रहा है? 5। तीसरा वाला 5 डिजिट का प्लस क्या आ रहा है? वही 5। चौथा वाला 5 डिजिट का प्लस क्या आ रहा है? 5। नेक्स्ट 5 डिजिट का प्लस क्या आ रहा है? 5। नेक्स्ट 553. 5 डिजिट का क्या आ रहा है? 3। उसके बाद फिर नेक्स्ट डिजिट का क्या आ रहा है? बस इतना ही है सर, अब तो 0 है तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया ना आंसर? Sir, what we 2 will 5 do for 5 5 5 3 digits? 3 डिजिट्स बिल्कुल बता दूंगा मैं। सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 23 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 is equal to 2 5 5 5 5 3, that is in the calculator. Okay, now okay, what's your question? Sir, what we will do for 3 digits? 3 digit example दो। Yes, sir. So Yes, give me one example. why we will not write the zeros? Because one's place 0 has the value. नहीं, 0 हैज द वैल्यू बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ 5 5 का एडिशन कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में 5 के लिए बचा है क्या? ग्रुपिंग है ना, 5 5 का एक साथ, और जो 5 ग्रुप में नहीं आ रहा है ना उसको ऐड नहीं करेंगे हम लोग। नहीं तो ये 0 को भी ऐड करते, ये 0 को भी ऐड करते, ये 0 को भी ऐड करते, तो 0 0 0 0 फिर आते रहता है। लेकिन इसको नहीं करेंगे क्योंकि 5 का ही ग्रुप बनेगा, लास्ट वाला 5 ठो तो यही है ना, Yes, sir. उसीलिए। Okay, sir. गुड, तो अभी फिर आगे बढ़े। तो कौन 3 डिजिट मतलब यही पूछ रहे हो क्या? कि 1 सेकेंड,
234 मल्टीप्लाई 11 ऐसा बोल रहे हो क्या? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे 234 मल्टीप्लाई 11 11 111, इसको भी करेंगे 234 मल्टीप्लाई 1 1 1 1, चारों कर देंगे एक ही टाइप का डिजिट का, सभी को पूरा क्लियर कट हो जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन ओनली, कोई दिक्कत नहीं, तीनों कर लेते हैं। 234 पहले लिखेंगे, उसके बाद 11 है तो कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो एक एक जीरो लगा देंगे। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 2, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 5, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 7, फिर लास्ट दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 4। हो गया आंसर एक बार में? यस सर। मल्टीप्लाई करना जरूरी है? नहीं है। देखो जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर भी देते, क्या होता 234 234, तो क्या है 4 4 हो गया, 3 + 4 बिकम 7 हो गया, 2 + 3 बिकम 5 हो गया, और 2 बिकम 2 हो गया। हो ही तो रहा है ऐसे। नेक्स्ट 234 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 234 111 मतलब कितना कितना जीरो लगाऊं? 2। डायरेक्ट 11 तो अभी हाँ इजी है, लेकिन बड़ा डिजिट ले। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगर डिजिट। आई टोल्ड यू दिस इज सो सिंपल बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग विद 11, बट व्हेन वी मल्टीप्लाई विद द 5 बार 1 or 10 bar 1, in that case we need to learn this concept. Okay, so here we are having the 111, so we are going to add 2020 in both the side. Clear? Now we are going to take the group of 3 numbers. सबसे पहला डिजिट आया 2, उसके बाद ये 3 नंबर लिया तो क्या हो गया 5, फिर ये 3 नंबर ले लिया तो क्या हुआ 9, फिर ये 3 डिजिट ले लिया तो क्या हो गया 7, फिर ये 3 डिजिट ले लिया तो हो गया 4। खत्म, डायरेक्ट आंसर 25974। इज इट क्लियर? सर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट पे रोटेट। हाँ लेफ्ट टू राइट ही चल रहा है हम लोग का। सबसे पहला डिजिट इधर से आया, दूसरा डिजिट इधर से आया, तीसरा डिजिट इधर से आया, चौथा डिजिट इधर से आया, पांचवा डिजिट इधर से आया। खत्म, अभी ट्री बना दिया, सबसे बेहतरीन ट्री। समझ में आ गया शायद मेरे हिसाब से? यस सर। ओके, लास्ट वाला कर लें। 2 3 4, 4 ठो 1 है तो 3 ठो 0 लगा दूंगा दोनों तरफ। सबसे पहले ये देखो आंसर भी निकल रहा है। पहला है 2, दूसरा है 7, तीसरा कितना है 9, चौथा कितना है वही वाला 9, पांचवा वाला कितना है 7, छठवा वाला शायद लास्ट है, कितना रहे 4। खत्म, ये वाला है 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 ये। और यहाँ पे ना एक कंसेप्ट होता है, बिना देखे भी, बिना बस क्वेश्चन को देख के हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उसको ना मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि जब खुद करोगे तब ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ 2 3 4 को 111 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 का ग्रुप लूंगा। सबसे पहला 3 ग्रुप का 2 आ गया, फिर ये 3 ग्रुप का आ गया 3 + 2 बिकम 5, फिर ये 3 ग्रुप का भी आ गया, हो गया 4 3 7 8 9, फिर ये दोनों आ गया 4 3 7, फिर ये अकेले आ गया 4। So in previous one it will 2599. 25 कहाँ पे 25974 ना, 25974 करेक्ट तो है 25974। कोई दिक्कत है? और एक क्वेश्चन कर लेता हूँ सर प्रीवियस वन 2599 321 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 111 से, क्या होगा? सबसे पहला लिखता हूं मैं 3, उसके बाद इन दोनों को प्लस करता हूं, कितना होगा 3 + 2 बिकम 5, फिर ये तीनों को प्लस करता हूं, कितना होगा 7, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस करता हूं, कितना होगा 3, फिर इस अकेले को लिख देता हूं 1। खत्म, 35731। ये होता है एडवांस कैलकुलेशन। पहले ये बेसिक को सीख लो, बहुत सारा प्रैक्टिस कर लो, देन आफ्टर दैट यू विल बी लर्निंग दिस ऑल। ओके क्लियर? इसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सो टुडे यू विल बी गेटिंग the practice set of multiplication with the 9 series and multiplication with the 1 series, 1 11 111 like this. Okay clear? Okay sir. Yes sir. तो समझ में आ गया मेरे हिसाब से सभी को? Yes sir. Yes sir.
So after that, we will be learning little 2-3 concepts more. Then the next thing is division. Clear? Yes, sir. Okay, fine.